Students, now this is next chapter for class 5 EVS food we eat. क्लास 5 EVS के लिए जो नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज फूड वी ईट. हियर we will learn about many different topics. What are these objectives? Number 1, describe different taste and how the food we eat gets digested. Different taste and how the food we eat gets digested. फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, इसके अलावा जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो हमें कैसे पहचानने में आते हैं. अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट. व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस डाइट? आइडेंटिफाई एंड नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज होते हैं उनके नेम, उन्हें पहचानेंगे. नो व्हाई फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड द वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड. फूड स्पॉइल कैसे हो जाता है, खराब कैसे हो जाता है और उसे हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर फूड वी ईट. ईटिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड कीप्स अस हेल्दी. यदि हम न्यूट्रिएंट रिच फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. ईटिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड कीप्स अस हेल्दी. इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस. न्यूट्रिएंट रिच फूड हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है और उसके साथ ही इन्फेक्शंस से और डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है. So this is very important to eat nutrient rich food. Let us learn more about different taste, digestion of food and the importance of a healthy diet. Now first topic is how we taste our food. हम अपने भोजन को किस तरह से टेस्ट करते हैं. You can see this picture. This is the diagram of tongue. You can see here this color, blue color, shows bitter taste and this green color shows sour taste and this pink color shows sweet taste and the corners yellow color is salty. So this way we taste our food by the use of tongue. Tongue help us to taste the food. इस तरह से हम फूड को टंग के माध्यम से टेस्ट करते हैं कि कोई भी फूड आइटम बिटर है, सोर है, स्वीट है या सॉल्टी है. All of us love to eat tasty food. Have you ever wondered why some food items taste sweet while others taste salty? हम सभी को खाना बहुत पसंद होता है. टेस्टी फूड सभी को बहुत अच्छा लगता है और ये जो भी टेस्ट होते हैं हम कैसे पहचानते हैं? टंग के माध्यम से. टंग में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट करने के सेंस मौजूद होते हैं जिससे कि हम अलग अलग स्वाद को, अलग अलग टेस्ट को पहचान सकते हैं. द टंग इज द सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट. टेस्ट के लिए जो सेंस ऑर्गन है वो है टंग. The tongue is the sense organ for taste. It has little bumps on it called papillae. ये जो little bumps होते हैं इन्हें हम papillae कहते हैं. Containing taste buds. इनमें taste buds होते हैं. These taste buds can identify the 4 main tastes: sweet, salty, sour and bitter. Different areas of the tongue help in sensing different tastes. You can see in this picture and also you make this diagram in your notebook. Now students, the interesting thing is there is a 5th taste called umami. एक नया टेस्ट भी अभी फाइंड हुआ है जिसका नाम है umami. There is 5th taste called umami. It is a taste that is neither sweet, sour, bitter nor salty. It is said to be found in cheese, meat and mushrooms. Cheese, meat and mushroom में ये टेस्ट पाया जाता है. This taste is called umami. Students, now we read about how food is digested.
The topic is how food is digested. We will understand about the digestion of food, the process by which food is digested. You can see this picture. This picture is of the digestive system. ये digestive system के बारे में complete picture है जिससे कि हमें digestion का process समझ में आएगा. Here is food pipe. You can see here mouth, then food pipe. This is called food pipe. This is liver. The next is stomach. Here you can see the small pancreas. These are small intestine and this one is large intestine and this anus. So this complete picture is of digestive system. Now we understand this process. When we eat, the teeth chew the food and break it down into small pieces. जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो टीथ के माध्यम से जो फूड है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. When we eat, the teeth chew the food and break it down into smaller pieces. We should eat slowly and chew our food well. डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए जो भी हम खाना खाते हैं उसे अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए. तो जो फूड के डाइजेशन का प्रोसेस है सबसे पहले माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, द टंग मूव्स द फूड अराउंड इन द माउथ एंड मिक्सेस द फूड वेल विथ सलाइवा. माउथ में फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का जो फंक्शन है वो टंग के द्वारा किया जाता है. द टंग मूव्स द फूड अराउंड in the mouth and mixes the food well with saliva. Saliva moistens the food making it soft. Saliva से जो फूड आइटम हम खा रहे हैं वो मॉइस्ट हो जाता है और वह फूड आइटम सॉफ्ट हो जाता है. Now the next process, after we swallow the food, it goes through the food pipe to the stomach. फूड आइटम माउथ के थ्रू फूड पाइप से स्टमक में जाता है. आफ्टर वी स्वेलो द फूड इट गोज थ्रू द फूड पाइप टू स्टमक. द स्टमक रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और वे फूड आइटम्स को मिक्स करते हैं और उन्हें स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं. The stomach releases digestive juices that mix with the food and break it down into simpler form. अब स्टमक में फूड और भी स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होता है और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस ऐड हो जाते हैं और जो फूड आइटम है और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है. Then the food goes into the small intestine. स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं जिससे कि फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. उसके बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. Then the food goes into the small intestine. The wall of the small intestine along with the liver and pancreas produce more juices that further help in breaking down the food. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पर उसकी जो वॉल होती हैं, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके साथ ही लिवर एंड पेनक्रियाज. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, लिवर एंड पेनक्रियाज ये सभी कुछ और जूसेस प्रोड्यूस करते हैं. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद द लिवर एंड पेनक्रियाज प्रोड्यूस मोर जूसेस दैट फर्दर हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड. अब यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस के साथ फूड आइटम मिक्स होते हैं जो कि लिवर की और पेनक्रियास की डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ऐड हो जाते हैं.
द फूड इज नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। अब यहाँ पर फूड एक तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब ये जो फूड है एज ए लिक्विड, ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाया जाता है। दैट इज हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी। द फूड इज नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। इट इज अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं through the walls of the small intestine and taken to all parts of the body. That is how the digestion take place in the body. इस तरह से body में digestion का process complete होता है। Students, we understood the process of digestion of food in our body. Now we will understand about importance of glucose. On the annual sports day, Dev noticed that after every race, many students were going to the nurse and having a cup of glucose water. He too drank some and instantly felt energized. What is so special about glucose water? He asked the nurse. She said that glucose travels to the cells of the body where it is converted into the energy which is used to carry out various body functions. इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? What we understood about this story, that glucose water gives us instant energy. जो ग्लूकोज वाटर होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जब भी स्पोर्ट्स वगैरह में जब ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तब स्पोर्ट्स पर्सन ग्लूकोज वाटर का यूज़ करते हैं जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। ग्लूकोज इज द शुगर फाउंड इन द ब्लड। ग्लूकोज शुगर का फॉर्म है जो कि हमारे ब्लड में होता है। ग्लूकोज इज द शुगर फाउंड इन द ब्लड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह जो ग्लूकोज होता है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। वी गेट ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स वी ईट। जो भी हम खाना खाते हैं फूड आइटम से हमें ग्लूकोज मिलता है। So glucose is very important for our body.